Hello students, this is Arvind Rai, your SST teacher from LPM Public School, and in this video, first of all, I hope that you all are very good at your homes and enjoying the vacations and preparing for your upcoming exams. And from this video, we are doing a favor to you to cover up the chapters, the proceeding chapters regarding your PA4 exams, upcoming annual exams. And this is the 8th chapter of geography, and the chapter name is Life in the Tropical and Subtropical Regions. Now, according to the key concepts of this chapter, first point is knowing about the natural regions of the world. Okay. Second point is understanding wildlife and human activity of the Amazon basin and equatorial tropical region. After that, learning about human activity of the Ganga Brahmaputra basin, a subtropical region. Okay. So these are the points which we are going to further read in these chapters. We are going to elaborate this topic and we are going to understand that what it is. Now, according to the first paragraph, what it says, have you ever noticed how we adjust, adapt, and modify our physical surroundings within the limits of nature? क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि कैसे हम एडजस्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचर, अपने नेचर के लिमिट्स में रह के. Our economic, social and cultural practices are by and large governed by our physical environment. जो हमारी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये लार्ज एंड गवर्न बाय आवर फिजिकल एनवायरनमेंट. ये सब क्या है, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से गवर्न है. थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ मैन विद द थ्री रिल्म्स, अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट डेवलप्स इन ईच रीजन. Okay, when we interact with the each realms of the atmosphere, okay, so a distinct kind of human environment develops in each region. जब हम सभी स्फीयर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो बायोस्फीयर हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, ठीक है, चाहे एटमॉस्फियर हो, चाहे हमारा जो लैंड स्फीयर है, ओके, जब हम किसी भी स्फीयर से कनेक्ट करते हैं और इन सारे स्फीयर्स के साथ कनेक्टेड होकर जब हम किसी एनवायरनमेंट में जब हम एग्जिस्ट करते हैं, तो एक अलग तरह का ह्यूमन एनवायरनमेंट हम डेवलप करते हैं हर रीजन में. These regions are termed as natural regions as they follow the boundaries of the natural features. और इन रीजन्स को नेचुरल रीजन्स कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल फीचर्स की बाउंड्रीज को फॉलो करते हैं. ओके. Now, second paragraph, what it says from here, it says natural regions are broadly classified based on of temperature belts. Okay, sorry for the interruption. Second paragraph says natural regions are broadly classified based on of temperature belts and rainfall distribution patterns of the world. जो नेचुरल रीजन्स होते हैं वो ब्रॉडली किस पे क्लासिफाइड होते हैं? बेस्ड ऑन द टेम्परेचर्स बेल्ट्स एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड. जो टेम्परेचर बेल्ट्स होते हैं, जो रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स हैं रेनफॉल के, उसके बेसिस पर ये क्लासिफाई होता है. दीज आर क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज: ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, वेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन, वार्म टेम्परेट रीजन, cool temperate region and polar region. In this chapter we will learn about life in two regions. One, the Amazon basin of South America in the tropical region, and the other is the Ganga Brahmaputra basin of the Indian subcontinent in the subtropical region. Now, what it says from here, in this chapter we will learn about life in two regions. हमारे पास 6 रीजन्स हैं जो हमारा जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर है या जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग
जो रीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 6 तरह के रीजन्स है, लेकिन इस चैप्टर में हम 2 तरह के रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्रॉम हियर वी कैन सी इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ इन 2 रीजन्स. हम जीवन के ऐसे 2 रीजन्स के बारे के जो जीवन हैं इन रीजन्स के उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला है Amazon basin of South America in the tropical region, and the other is the Ganga Brahmaputra basin of the Indian subcontinent in the subtropical region. Now, the tropical regions near the equator are covered by tropical rainforest that are characterized by dense vegetation, seasonally warm temperatures, and abundant rainfall. These locations include Africa, Zaire basin, and Madagascar, सेंट्रल अमेरिका एंड द अमेजॉन रिवर बेसिन. ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जो इक्वेटर के पास हैं और जो कवर्ड हैं बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट आर कैरेक्टराइज्ड. इनकी विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही डेंस है, सीजनली वार्म टेम्परेचर्स हैं एंड एबंडेंट रेनफॉल है. ठीक है, दीज लोकेशंस इंक्लूड, और इस लोकेशंस में कौन कौन से हिस्से आते हैं? अफ्रीका, जायरे बेसिन, द मेडागास्कर, सेंट्रल अमेरिका एंड द अमेजॉन रिवर बेसिन. सेंट्रल अमेरिका और द अमेजॉन रिवर बेसिन. नाउ द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिफर्स टू द जोन्स बिटवीन 10 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स. जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो किसको रिफर करता है? जो जोन्स लाई करते हैं 10 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स. 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो लैटिट्यूड होता है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, उसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन कहा जाता है. द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैन बी फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ ईस्टर्न साउथ अमेरिका, कोस्टल साउथ ईस्ट साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न एशिया फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया थ्रू साउथ चाइना टू जापान. ओके, सो दीज आर द points given in this in this topic. After that, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन. इसमें सबसे पहले है द अमेजॉन बेसिन. लोकेशन क्या है इसकी? द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड एंड इज अ टिपिकल ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन एज इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ and 10 degrees south. The Amazon River, one of the world's longest river, is a network of nearly 500 tributaries from the river basin. ठीक है, ये क्या कह रहा है? जो अमेजॉन बेसिन है साउथ अमेरिका में इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर बेसिन है एंड इज अ टिपिकल ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन एज इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. और ये पूरी तरह से जो है ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, क्योंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक इक्वेटर के पास लाई करता है. द अमेजॉन रिवर, जो अमेजॉन रिवर है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर. ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है जो नेटवर्क ऑफ नियरली 500 ट्रिब्यूटरीज है फॉर्म द रिवर बेसिन. ठीक है, after that the Amazon basin includes extensive portions of Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador and Colombia. The Amazon basin has about 22,500 kilometers of navigable waterways. क्या कह रहा है? जो अमेजॉन बेसिन है उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सटेंसिव पोर्शंस हैं जो इंक्लूड होते हैं, जैसे ब्राज़ील के, बोलीविया के, पेरू के, इक्वाडोर के और कोलंबिया के. जो अमेजॉन बेसिन है उसमें 22,500 किलोमीटर्स का नेविगेबल वाटरवेज है. मतलब 22,500 किलोमीटर्स हम अमेजॉन बेसिन में वाटरवेज को नेविगेट कर सकते हैं. द अमेजॉन रिवर राइजेस इन द स्नो कवर्ड एंडीज माउंटेन इन पेरू एंड फ्लोज ईस्टवर्ड टू द अटलांटिक ओशन. जो अमेजॉन नदी है वो राइज करती है कहाँ से? स्नो कवर्ड एंडीज माउंटेन, जो बर्फ से घिरा हुआ जो एंडीज माउंटेन है वहाँ पेरू में, वहाँ से राइज करती है और ईस्टवर्ड बहती है अटलांटिक ओशन की तरफ. इट वाटर डिस्चार्ज इज 60 times greater
देन दैट ऑफ द रिवर नाइल। जो इसका पानी का जो डिस्चार्ज है वो 60 गुना ज़्यादा है नाइल नदी से। द अमेजॉन रिवर एड्स मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट टू द अर्थ्स वाटर साइकिल। जो अमेजॉन नदी है वो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करती है हमारे धरती के वाटर साइकिल में। इज इट क्लियर? इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, you can reverse the video, you can listen again the explanation, and you can read by yourself also in your book, and after that you are going to understand the line and topic. Now, climate of this region. The sun rays fall directly on this region, hence it receives maximum heat from the sun. Also, the temperature ranges from 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, which is a very low temperature throughout the year. The annual precipitation averages 2160 millimeters. Okay? जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली फॉल करती है इस रीजन पर, इसी वजह से मैक्सिमम हीट अवेलेबल होता है यहाँ पर सन के द्वारा, जो रेंज करता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. द एनुअल प्रेसिपिटेशन एवरेजेस 2160 millimeters. It rains almost every day in the afternoon. यहाँ पर हर शाम में बारिश होती है. This afternoon rain is also called the 4 o'clock rain. इस आफ्टरनून की बारिश को हम 4 o'clock बारिश भी कहते हैं. The level of humidity in the Amazon basin remains high throughout the year. यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है अमेजोन बेसिन में वो पूरे साल हाई रहती है. At the same time, the temperature in this region ranges from 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है इस रीजन का वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, विच इज़ वेरी लो टेम्परेचर रेंज. इन शॉर्ट, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर हाई इन दिस रीजन. और हम इसको समराइज करके ऐसे समझ सकते हैं कि इस रीजन का जो टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन होता है वो साल भर हाई ही रहता है इस रीजन में. Okay, so these were the points regarding climate. Now we are going to read about vegetation. Vegetation in the tropical region of the Amazon basin is characterized by equatorial rainforest. जो vegetation इस tropical region का Amazon basin का वो equatorial rainforest के द्वारा characterized होता है. The Amazonian equatorial rainforest are biomes with the most diverse vegetation and wildlife. ये बहुत सारे vegetation और wildlife के लिए एक diverse जगह है Amazonian equatorial rainforest region जो है. These forests are very dense. ये जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं. And are characterized by tall, broad-leaved evergreen trees. यहाँ पर बहुत लंबे पेड़ और बहुत ही चौड़े पत्ती वाले पेड़ पाए जाते हैं. The forest has different layers. इस फॉरेस्ट में कई लेयर्स हैं. इन द एमरजेंट लेयर द टॉलेस्ट ट्रीज स्टिक आउट फ्रॉम द कैनोपी. ओके, जो इमरजेंट लेयर होता है, इन द इमरजेंट लेयर जो टॉलेस्ट ट्री होती है वो कैनोपी से ऊपर जाती है. द कैनोपी लेयर इज फाउंड बीनीथ द एमरजेंट लेयर. कैनोपी लेयर जो है वो एमरजेंट लेयर के नीचे पाई जाती है. Underneath the canopy layer there is an understory layer formed by shrubs and small trees. और canopy layer के नीचे understory layer है जो shrubs और small trees के द्वारा बनाई जाती है. The forest floor is the ground layer. और जो forest floor है उसको ground layer कहा जाता है. On average one can find more than 300 species of trees. एक एवरेज तौर पर वहाँ पर 300 से ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं ट्रीज के पर स्क्वायर किलोमीटर में. पर स्क्वायर किलोमीटर में 300 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं अमेजॉन बेसिन में. दे आर मोस्टली हार्डवुड ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल इबोनी, टीक, मैहोगनी, रोजवुड, चिंकोना एंड रबर. डेसिडस ट्रीज फाउंड इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ग्रो टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर्स. जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में वो 50 मीटर्स तक के हाइट के होते हैं विथ शैलो रूट्स, बट दे डेवलप बट ट्रीज रूट्स एबव द ग्राउंड टू सपोर्ट देयर हाइट. और इसके अलावा ये अपने रूट्स को ज़मीन के ऊपर भी ग्रो करते हैं ताकि अपने हाइट को सपोर्ट कर सकें. ट्रीज ग्रो सो डेंसली दैट दे फॉर्म अ थिक कैनोपी
which restricts the sunlight from penetrating the surface. यहाँ के पेड़ इतने घने होते हैं, इस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं कि जो सनलाइट होती है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाती. Hence limited growth occurs on the ground. इस वजह से वहाँ के ग्राउंड पर बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ होती है पौधों की. There is no grass. वहाँ पर कोई भी घास नहीं है. Woody vines called lianas coil around the trees. Okay? जो वुडी वाइन्स होते हैं जिसको हम लियानास कहते हैं, ये पेड़ों के चारों तरफ कवर करते हैं. So these were the topics, and after that in our next video we are going to cover the next topics, for example wildlife and other such topics. After that human activity. So revise the topic and prepare for your exams at your homes, and hope we will soon join in our physical classes. Till then, please prepare according to the videos. Thank you.